Hello dear children. So welcome to the class 9 day 2 topic motion physics. So as you all know, in day 1 we have discussed about the units motion and rest, physical quantities, scalar and vector quantity. So today we are going to discuss about very important topic, distance and displacement and numericals related to distance and displacement. तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी विल मूव तो इट विल डेफिनेटली कवर अ पाथ, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल डिस्टेंस. और डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, वेयर कहीं से कहीं भी जाए, दैट मींस इट्स डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन. वेरी सिंपल, राइट. टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी during its motion. So we can say total path covered by a body during or after the motion, right? That is during motion. So yes, we know that this is the total path covered or the actual path covered by the body during motion. So we can measure it also. This is a physical quantity, so it will have some unit, and that unit we will always talk about SI unit. SI unit of distance is meters, m, right? So it will be the SI unit of distance. As it's a physical quantity again, so we can measure it also with the help of a device that we call odometer, and this is the instrument which we can use to measure it. The odometer you all have seen in our bike, in our car we have speedometers like this, right? Here we have another meter where we mention kilometer. This is our odometer, right? So this is all about distance. Now there is another quantity, we will do it in the comparison form, and that is displacement. So what is displacement? Displacement is same as distance, but the difference is this, that in displacement we will refer the direction also. Direction, as we are referring the direction. So in the last lecture we have already discussed about a physical quantity which is having magnitude as well as direction, and that physical quantity is known as velocity, acceleration, displacement. Example में किया था. तो this displacement is a vector quantity, right? So what is displacement actually? First of all, it is the shortest and straight line path between initial and final position, right? Now what is initial position, what is final position? Initial position is that position from which the object starts its motion. Final position is the position at which the object ends its motion, right? End करता है, रुक जाता है वहां पे आके. This is initial and final position. So for our convenience we are taking an example. Suppose the body is starting from position A, right? A से body जा रही है, then here, then here, then here. So body is coming to end its motion. Let this point is F. So this is my final position, right? And this is my initial position. Now if we want to find out the distance, so distance is equal to, as distance is total path covered by a body during motion, तो distance को हम कैसे लिखेंगे, जहां जहां से बॉडी होगी ये सबको ऐड करेंगे. पहले A से B,
फिर B से C, फिर C से D, फिर D से E, फिर E से F। मतलब इसमें किसी भी डायरेक्शन में वो टर्न कर रही है, किसी भी तरफ मुड़ रही है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग उसको एज इट इज ऐड कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस। अब दूसरी तरफ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूं इसी बॉडी की इसी मोशन के दौरान, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन इज A, फाइनल पोजीशन इज F, बट देयर इज नो line which is joining these initial and final position. So what I am going to do, I will draw a straight line which will go from A to F, that is initial to final position. तो initial to final position displacement हो गई A F. We are representing with the help of direction. So it's a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर की हेल्प से नोटेशन ऊपर डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए, एज इट्स लेंथ, तो इसका भी जो SI यूनिट है वो भी सेम होगा, दैट विल बी मीटर M। ओके, एज इफ नाउ देर इज नो इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं है जैसे हमारे पास, वी कैन सिंपली मेजर द डिस्टेंस, बट उसी की तरह हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं कर सकते, राइट? तो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कि डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो इज इट पॉसिबल दैट डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? इज इट पॉसिबल कि डिस्टेंस and displacement both are equal, body is going in haphazard manner and displacement straight line, फिर भी दोनों इक्वल हो सकती हैं? आंसर इज यस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस इट कैन बी। व्हेन सपोज बच्चों बॉडी A से स्टार्ट हुई, गई B से, B से C पे, C से D पे, D से E पे, तो आप देख सकते हैं दिस इज माई इनिशियल पोजीशन IP, दिस इज माई फाइनल पोजीशन FP। नाउ बॉडी इज गोइंग स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, सपोज इट इज 10 किलोमीटर, इट इज 7 किलोमीटर, इट इज 10 किलोमीटर, इट इज 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना आएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, क्या आ जाएगा? 37 किलोमीटर। सबको ऐड कर दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होती है भैया स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन वो रही, स्ट्रेट लाइन है। चलो स्ट्रेट लाइन में, जब हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे सबको ऐड करेंगे, वो भी क्या आएगा? 37 किलोमीटर। समझे? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कंडीशन ये जरूर है कि बॉडी ना तो डायरेक्शन चेंज करेगी, बस सीधा जा रही है, ओके? ना राइट ना लेफ्ट ना रिवर्स, बस स्ट्रेट जाना है, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्पेशल केस फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देयर इज अनदर वन कि इज इट पॉसिबल दैट डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट is 0? Yes, this is also possible. When it is possible? अब ध्यान से देखिए कि डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी अगर चलेगी तो कहीं से भी चले, यहां से चले यहां, घूमती फिरती चलती घूमती कहीं भी जाए, तो हम सारा डिस्टेंस ऐड करेंगे भाई, तो वो तो डिस्टेंस तो कभी जीरो हो नहीं सकता, नो डाउट इन इट। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट में एक कंडीशन है, वन कंडीशन इज देयर। अगर आप ध्यान से देखो डेफिनेशन को, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इमेजिन करो कि भाई फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के साथ ही आ जाए, बिल्कुल ऊपर आ जाए, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे? जब कोई बॉडी कहीं भी मूव करे, सपोज करो अगर सर्कल में मूव कर रही है ऐसे इस तरीके से,
राइट, स्क्वायर में मूव कर रही है बॉडी ने, यहां से स्टार्ट किया मोशन ए, ऐसे घूम के वापस यहीं आ गई, राइट। इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो क्या हो गया, डिस्टेंस जीरो नहीं है, ये 10 किलोमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, डिस्टेंस तो हो गया 40, बट डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो। तो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, राइट। तो इस चीज को बड़े ध्यान में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं दो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होती हैं और कब डिस्टेंस जीरो नहीं होता बट डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली जीरो होती है, राइट। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो हम करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है कि क्लास 9th के अंदर न्यूमेरिकल्स ही हैं जो एक हमें नए से बड़े नई चीज़ लगती है और इसमें बच्चों को ज़्यादातर घबराहट होती है, बट डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और अगर आप इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत ईजी लगेंगे आपको न्यूमेरिकल। तो आज हम फर्स्ट टाइप करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमें करने हैं न्यूमेरिकल। चलिए कर लेते हैं फिर। तो मेनली जो मैंने किया है न्यूमेरिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। वन इज, द फर्स्ट टाइप इज फिगर बेस्ड, कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी और स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो एक पर्टिकुलर फिगर बनेगी, राइट। फिगर बेस्ड बोलते हैं उसको। सेकंड होता है डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड में क्या होता है कि बताएंगे आपको कि बंदा 10 मीटर नॉर्थ में गया, फिर राइट टर्न लिया या लेफ्ट टर्न लिया या सीधा चला गया साउथ में गया, तो बताओ भाई कहाँ होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन कहाँ होगी। तो ये उस टाइप के हैं, राइट। और थर्ड होते हैं बेटा क्लॉक बेस्ड। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमें क्लॉक दी होगी और बोला जाएगा कि मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ है वो इतनी है और आप बताओ टाइम दे देंगे हमें कि 9 to 9:30 या 10 to 10:30 के बीच में या 10 to 10:15 के बीच में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दीज न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 9 which you are going to find it very easy, right। चलिए, तो द फर्स्ट इज फिगर बेस्ड। अब फिगर बेस्ड को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। बड़े ध्यान से देखना है कि 2 पार्ट्स कौन से हैं। 2 पार्ट्स होंगे हमारे पास जब नंबर ऑफ राउंड्स आर गिवन, राइट। क्या मतलब है नंबर ऑफ राउंड्स आर गिवन? एंड व्हेन टोटल टाइम इज गिवन। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आएगा, कहता है पर्सन इज मूविंग अराउंड द स्क्वायर फील्ड। एक बंदा है, ये हमने स्क्वायर फील्ड बनाया A, B, C एंड D। लेट इट बी 10 मीटर्स। अपने कन्वीनियंस के लिए हम थोड़ा इजी वैल्यू ले लेते हैं, राइट। अ पर्सन इज मूविंग अराउंड द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 राउंड्स। तो बच्चों जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करना आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, सबसे पहले आपने इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिसाइड करनी है कि इनिशियल पोजीशन कहां है और फाइनल पोजीशन कहां है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिना आपको नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा कि न्यूमेरिकल में करना क्या है और कैसे करना है, राइट। चलिए, तो अब हम डिसाइड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमने कुछ भी बताया नहीं, कहां से स्टार्ट किया, हमने अपनी तरफ से डायग्राम बनाई। स्क्वायर था,
सपोज किया मैंने बॉडी यहाँ से स्टार्ट की ए से, तो 5 राउंड में अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है तो 5 राउंड में वो रुकेगा कहाँ पे, 1 राउंड, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 राउंड करने के बाद वो ए पे ही वापस आ गया। जब ए पे वापस आ गया तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक राउंड के अंदर कितना करेगा भैया, 10 + 10 + 10 + 10 मतलब 40 मीटर। तो डिस्टेंस इन 5 राउंड्स, 5 राउंड्स के अंदर कितना करेगा, 40 × 5 = आ गया 200 मीटर। वेरी इजी आ गया ये तो। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिंपली हमने कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरी टाइप देखो, दूसरी टाइप कहता है व्हेन टोटल टाइम इज गिवन। टोटल टाइम का क्या मतलब है, मैं इसी को उठा लेता हूं, इसी शेप को दोबारा से 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें बोला जाएगा कि भैया फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें गिवन होगा एक राउंड, राइट, कंप्लीट्स 1 राउंड in 40 seconds, right? Find distance and displacement at 2 minutes and 20 seconds। अब उसने क्या दे दिया, ये मतलब था मेरा टोटल टाइम का, कि टोटल टाइम में बताना है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आना है, मतलब हमें सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स पता होने चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि कितने राउंड कंप्लीट किए और कहां पोजीशन है, कहां फाइनल पोजीशन है, कहां जाके बॉडी रुकेगी। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 40 सेकेंड इज इक्वल टू कितना है, सॉल्यूशन है इसका, 40 सेकेंड्स में कितने राउंड करता है, 1 राउंड, राइट। 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड में कितने करेगा, 140 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 3.5 राउंड। अब आ गए हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स। अब ये न्यूमेरिकल बन गया फर्स्ट टाइप वाला, राइट। तो 3.5 राउंड में इनिशियल पोजीशन अगर सपोज करो ये है, तो 3.5 राउंड में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ, तो फाइनल पोजीशन आके रुकी यहां पे। ओके, तो डिस्टेंस उसी तरह से, डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक राउंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 मीटर्स, राइट। डिस्टेंस इन 3.5 राउंड्स, उनमें कितना हो जाएगा, 40 × 3.5, ये आ गया 140 मीटर। तो दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, 140 मीटर्स। अब बात आ गई डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं थोड़ा इसी यहीं पे कर देता हूँ, इजी, ज़्यादा इजी समझ आएगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², क्योंकि AC मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, AC² टू AB की वैल्यू थी 10, पुट अप कर दी, BC की वैल्यू भी थी 10, तो ये आ गया AC² इज इक्वल टू 100 प्लस 100, इट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू √200। तो AC की वैल्यू आ गई 10√2 मीटर। तो यूनिट भी जरूरी है, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं। देखिए मीटर मीटर जरूर लिखा जाता है फिजिक्स के अंदर, यूनिट कभी नहीं भूलने, ओके, याद रखने हमेशा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन फिगर बेस्ड। चलिए अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे, विच इज डायरेक्शन बेस्ड। तो डायरेक्शन बेस्ड में क्या है कि डायरेक्शन के लिए हमें हमेशा ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि स्टेटमेंट आएगी, अ पर्सन मूव 10 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले आपको एक फिक्स पोजीशन यहां कर देनी है कि भैया यहां से स्टार्ट हो गया 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहां आ गया O से A, ये हो गया 10 मीटर, राइट। देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 10 मीटर। लेफ्ट टर्न किस तरफ हो गया, नॉर्थ में, फिर से नॉर्थ में कितना हो गया 10 मीटर, ये आ गया B।
देन अगेन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड मूव 20 मीटर। तो 10 तो ये हो गया, 10 आगे मूव कर गया, राइट, ये आ गया सी, राइट। तो ये टोटल कितना है 20 मीटर। अब कहता फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द पर्सन। तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस तो कोई मुश्किल नहीं है, ओ से ए से बी से सी। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज माय फाइनल पोजीशन। चलिए, तो कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 20, ये आ गया 40 मीटर्स। ओके, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हम इनको ज्वाइन करेंगे, ओसी को, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 थी, ये 10 कट गई, यहां भी 10 रहेगी। तो उसी तरीके से ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ना देते हैं डी, ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। फिर से वही कैलकुलेशन, सेम आंसर आएगा। दैट मीन्स ओसी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 100 प्लस 100, ओसी इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये हो गए बेटा डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड में कैसे होंगे, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा क्लॉक बेस्ड। तो क्लॉक बेस्ड में क्या होता है कि क्लॉक विल बी गिवन, राइट, इस तरीके से। ये है 12, 3, 9, 6। अब उसमें क्या स्टेटमेंट दी होगी, मैंने आपको जैसे बताया कि मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपको गिवन होगी पूरी। सपोज इट इज 7 मीटर्स। अच्छी सी बना दें, राइट, तो वो हमें गिवन है 7 मीटर। अब वो बोलेगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 9 to 9:30। तो आपने क्या करना है, 9 to 9:30 में देखना है कि 9:30 पे जो मिनट हैंड है वो कहाँ आएगी, इस पोजीशन पे बिल्कुल आएगी 9:30 पे। तो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, जब वो सर्कल में मूव करती है बॉडी तो डिस्टेंस विल बी इज इक्वल टू 2πr। लेकिन 9 to 9:30 में क्या कर रहा है, वो हाफ सर्कल कवर कर रहा है। देयरफॉर 9 to 9:30 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr/2, क्योंकि हाफ हो गया उसका, तो बन गया πr। अब यहां पे रेडियस कितना है 7, मिनट हैंड जो होगी, लेंथ होगी, वो होगी हमारे रेडियस के इक्वल, तो ये बन गया 22 मीटर। लीजिए, ये आ गया अपना डिस्टेंस। अब बात आ गई डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन स्टार्ट किया था यहाँ पे, फाइनल पोजीशन आई यहाँ पे, राइट। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनानी है तो क्या हो गया, पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब 7 + 7 14। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, डायमीटर के इक्वल, दैट इज 2r, 14 मीटर। तो ये वाले सम करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं इस तरीके से। सपोज अगर आपको आ गया 9 to 9:45, तब आपने क्या करना है, 9 to 9:45 में देखिए 4 पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हो गया, तो डिस्टेंस तो आपका आ ही जाएगा। डिस्टेंस अगर 2πr था, राइट, डिस्टेंस 2πr था क्योंकि हाफ हमने कर लिया, πr आ गया था। अब इसमें कितना कवर कर लिया, 3/4। तो क्या कर देना उसको, 2πr को आपको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 3/2πr दैट विल बी डिस्टेंस अगर 9 to 9:45 आता है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, फाइनल पोजीशन होगी ये भी 7 बन जाएगा, ये भी 7 है। उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। एंड 9 to 9:15 में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, बस उसमें डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी 9 to 9:15 में, क्योंकि 1/4 कवर करता है, तो 1/4 × 2πr करना है, बहुत ईजी रहेगा, राइट। दोबारा से सुनो, अगर तो 9 से 9:15 हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस क्योंकि 1/4 कवर किया सर्कल का, तो सर्कल के पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2πr × 1/4।
अगर 9 to 930 है तो हाफ हो गया, 2 पाई आर इंटू 1/2, यहाँ पे 3/4 हो गया, राइट। तो 3/4 से करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता ही है, इस केस में सिर्फ क्या होगा, डायमीटर के इक्वल होगा। इस केस में कैलकुलेट करनी पड़ेगी पाइथागोरस से, इस केस में भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 9 to 10 ही आ गया, मतलब 9 to 10, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर, क्योंकि उसने एक राउंड पूरा कर लिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशंस, राइट, and special cases. Difference between distance and displacement you can write yourself, and I hope you have understood the topic. Okay, and in my next class we are going to discuss about speed and velocity and its types and numericals related to speed and velocity. If you have any doubt in any topic and if you have any query, any problem, you can drop a message in my comments, okay, where I will give you the solution, or you can mail me your doubts shekhar.saini83@gmail.com. Thank you so much for watching the video.